Sir, I vehemently oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill 2022. On behalf of my party CPIM, under Rule 72 of the Rules of Procedure and the following grounds. Sir, 1. The bill is a proposal for complete centralization of authority, and it is a frontal attack on the federal principle of our Constitution. Many states have strongly protested against the bill, as the electricity comes under Article 246 list, Schedule 7, third in the item 38 in the Constitution. So it is purely under concurrent list. So it's a detailed discussion needs to be done with the stakeholders. Okay. My second point is, sir, it is against the principle laid by the Honorable Supreme Court dated 11/4/2017 in the Energy Watchdog case, Civil Appeal 5399 and 5400 of 2016. The Honorable Supreme Court uphold the role of the state electricity boards. Sir, I quote from the judgment. It gives the state enough flexibility to develop their power sector in their manner they consider appropriate. The third point, sir. The third point is that withdrawal of the bill was one of the main demands of the year-long farmers' struggle. Sir, government had given written assurance to the farmers. Okay, you have made your point. Adhir Ranjan ji. Yeah. Sir, thank you, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of this bill under 72(2) on the rules of procedures and conduct of business in Lok Sabha. Sir, first of all, this bill clearly violates the principle of cooperative federalism in our country, as has been stated by my colleagues also. The bill puts more power in the hands of central government, effectively diluting the powers of the state government. This goes against list 3 concurrent of the Constitution, where electricity is a concurrent subject. Sir, the establishment of the central authority like the proposed. आपके colleague बोल चुके हैं. Sir, ये नहीं बोला. ये जो बोला ये नहीं बोला. Sir, the establishment of a central authority like the proposed National Load Dispatch Center rips away the decision-making power of the T.R. Baluji. Sir, ये क्या हो रहा है सर? हो गया. नहीं सर, नहीं हुआ. नहीं, Mr. Manish Tiwari. No, please sit down. Baluji, no, Baluji, please start your. Mr. T.R. Balu, please. Ji, no, Mr. Manish Tiwari has. No, he has made all the points. Please don't repeat. माननीय मंत्री जी कुछ कह रहे ऑनरेबल चेयरपर्सन सर जी ऑनरेबल चेयरपर्सन सर हमने ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी गिवन a letter to you. I have already given notice of my intention to move that the Electricity Amendment Bill be referred to the Standing Committee for examination. तो वहां पर डिस्कशन हो ही जाएगा. ये जो पॉइंट्स उठाए उसका मैं जवाब दे देता हूं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए हमने आपको नोटिस दे दिया है. तो ये बेकार समय का हाउस बर्बाद कर रहे हैं और तो स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन हो ही जाएगा. स्टैंडिंग कमेटी में सबके प्रतिनिधि है, वहां तो निर्णय हो ही जाएगा. माननीय मंत्री जी ने अपनी इच्छा स्पष्ट किसको प्लीज बैठ जाइए. If I am on legs, how can you be? No, please sit down. अब अधीर दा बैठिए. अधीर दा, you are the leader. That's why you should sit. प्लीज बैठ जाइए. आप क्योंकि नेता हैं, बैठ जाइए. प्लीज बैठ जाइए. बैठिए. विराज. हाँ प्लीज 1 मिनट प्लीज बैठिए. 1 मिनट बैठिए. पहले मंत्री जी की बात. मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हो? बात सुन लो. माननीय स्पीकर साहब, 1 मिनट. ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई हैव ऑलरेडी गिवन इट. ऐसा कोई भी शब्द क्या हो तो निकाल देंगे प्लीज. ऑनरेबल स्पीकर साहब, I have already given ऐसा कोई भी शब्द क्या हो तो कार्रवाई से निकाल दो प्लीज. बैठ. Honorable Speaker, sir, I have already given notice of my intention to move the following motion,
that the Electricity Amendment Bill 2022 be referred to the Standing Committee on Energy for examination. Now, my simple submission is this, that this entire matter will be discussed in the Standing Committee. Okay. And the Standing Committee has representatives from all the parties. Therefore, my entire matter was that we can save the time of the House. नो and refer it प्रॉब्लम. to the Standing बिल Committee. जब स्टैंडिंग कमेटी में भेजने का निर्णय के जब डिस्कस उसमें हो जाएगी ना. हाँ. एक प्लीज बैठिए. माननीय सदस्य, लास्ट दिन है, ऐसा मत कीजिए. प्लीज बैठिए. नो, एक मिनट. ऑनरेबल मेंबर प्लीज. ऑनरेबल मेंबर प्लीज बैठिए. माननीय सदस्यगण, कभी भी जब इंट्रोड्यूस बिल होता है मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर देता हूं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको पर्याप्त समय. जब माननीय मंत्री जी इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी के लिए मेंशन कर रहे हैं तो उस समय जब स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद आप उस रिपोर्ट पर आकर चर्चा करेंगे. क्लियर कर दिया ना. अब क्लियर कर दिया ना. आपकी एक मिनट मैडम, प्लीज मैडम, आप सबकी डिमांड यही थी ना. नहीं मैं अधीर रंजन जी साहब, मेरी बात, एक मिनट. मुद्दे आपके थे और मुद्दों के बाद वो था कि आप इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी भेजो. ऐसा नहीं सर, हम लोग इंट्रोडक्शन के समय विरोध किया. हाँ, इसके लिए ये मायने ना निकाला जाए. इसको स्टैंडिंग कमेटी के भेजने के लिए मैं लोग मांग कर रहे हैं. एक सबको दूंगा मौका. एक मिनट. हाँ, नहीं आना चाहिए ना स्टैंडिंग कमेटी ना सदन. ओके. यही हमारा मांग है. ओके, आपकी बात सुन ली. एक मिनट प्लीज मैडम बैठिए. एक मिनट आप भी बोल लें. बालू जी कोई बात नहीं. बोलिए ना. आपने मेन बात बोल दी. आपने बोलने का मौका नहीं मेन बात बोल ली आपने. बोलने का मौका Very simple, sir. नहीं दिया सर. Sir, नहीं, मेरा it is कहना है. very simple. Even before what we want to say, the ministry is eager to send it to the standing committee. Why should he introduce the bill at all? He should have kept quiet for some time. Sir, 35 years ago, my late leader, Dr. Kalaiya Karunanidhi, while he was in Chief Minister of Tamil Nadu, he has introduced the free power scheme. More than 22 lakhs pump sets are availing the free power. 14.38 lakhs hectares are enjoying. The farmers are having the 14.38 hectares. They are enjoying the free power. Okay. So what will happen to them? What will happen to the poor farmers? See, we have to get the answer, elicit the answer from the minister. Then only we can allow them to. Okay. See, the same thing should continue. That is why the bill has to be withdrawn. No. Or it has to be sent it to. मिस्टर बालू बोल रहे हैं, आप क्या हाथ खड़ा कर रहे हैं? Allowing to standing committee, No. no problem, sir. अधीर रंजन जी एक मिनट बोल दें आप. सर एक मिनट बोलते हैं सर. सर बात ही है कि सर ये सिर्फ हम लोग यहाँ से नहीं, मान लीजिए तेलंगाना की सरकार, पुडुचेरी की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, पंजाब की सरकार, सारे इनको विरोध पहले कर चुके हैं. और सबसे बड़ी बात है कि संयुक्त किसान मोर्चा जिनके साथ सरकार की जब चर्चा चल रही थी तो उस समय इन्होंने वादा किया था कि अगर कुछ बदलाव लिया जाए तो संयुक्त मोर्चा के सारे सदस्यों के साथ, संगठन के साथ बात करते हुए कोई अगर Okay. परिवर्तन करने की जरूरत हो तो कहा नो. सर किया जाएगा. लेकिन No. ये नहीं मानने के लिए तैयार है. सर ये सर किसानों के लिए सबसे बड़ा सर्वनाश लाने वाला एक बिल है. और सर No. 27 लाख हिंदुस्तान की. स्वागत राय जी. On behalf of All India Trinamool Congress, हाँ, एक मिनट बोल रहे हैं. sir, एक minute. एक मिनट. I oppose the introduction of the Electricity Amendment Bill. This is an anti-people bill meant to pass. आप तो कानूनन बात करो. एक सेकंड. जब कानूनन बात करो तो कानूनन बात करो. सुनिए ना. क्या ये सरकार बिल ला सकती नहीं ला ठीक सकती? है. कानूनी परिधि से बात अच्छा, कीजिए. सुनिए ना. आप भाषण मत दीजिए. नो, गलत तरीका आपका. अब सुनिए, गलत नहीं बोला. इंट्रोड्यूस के समय अब आपका सुनिए. विरोध करने का हक है तो अच्छा, आपका ठीक कानूनी है. तरीके से हक है. ठीक है सर. आप फिर नियम से चलिए. This bill seeks to transfer state-owned power utilities to private hands. This bill seeks to give several power companies the right to distribute power in the same area. Sir, इससे क्या होगा? जैसा मोबाइल फोन का है, एक इलाका में 8-10 पावर Okay, okay. Sir, this आप last तो point. नियम प्रक्रिया से बात कीजिए. One last point. The government
gave it in writing to the Sanjukta Kisan Morcha No. on 9th December. No, no. Sir, what is no गलत। here? आपको भाषण नहीं, आप तो ये ला सकते हैं कि इस बिल को लाने का अधिकार सरकार को है या नहीं, इस पर आप बोल सकते हैं। सर वकील साहब बताएंगे। सर एक मिनट बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। ये माइक चल रहा है सर। नो, आप माइक चल रहा है तो माइक में इजाजत दी माने। एक मिनट मंत्री जी, मैंने आपको इजाजत नहीं दी मंत्री जी। आप वकील। You gave it writing. Now you are withdrawing. नो डिस्कस, You are cheating the public. नो डिस्कस। अधिवक्ता, Writing. सीनियर अधिवक्ता अपनी सारी राय कर रहे हैं सब। Chairperson has asked me whether केवल इस विषय पर इंट्रोड्यूस के समय क्या नियम है, ये बता दो इनको सबको। legislative competence of the House Yes. is the only criteria. There is no other criteria. And I believe once the Honourable Minister Singh is going to the Standing Committee, Mr. Baluji also said the same thing. If he's sending it to the Standing Committee, Okay, it will go to the Standing Committee. End of matter. नो, किसी भी सदस्य को इसमें बोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्लियर डायरेक्शन। नो, बैठिए। आप रोज 100 लोग इंट्रोड्यूस में लिख दोगे, 100 लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। नो, गलत। माननीय सदस्य, आपको मैंने कह दिया है, मैं आप सीनियर सदस्य हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे, प्लीज अपनी सीट पर जाइए। प्रश्न ये कि विधेयक, मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बिंदु बोलना चाहता हूं। ये आवश्यक ही बोला जाए ताकि जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या तो जानबूझ के अध्यक्ष मैं बोल रहा हूं, आप यदि बोले तो मैं सुने। ये जो फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है इसका मैं प्रतिकार करूं। अध्यक्ष महोदय, सब्सिडी के विरुद्ध इस बिल में कोई नहीं है। जो किसानों को फ्री बिजली मिलता था मिलता रहेगा, इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जो ये इसमें सब्सिडी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जो कह रहे हैं कि एक क्षेत्र में मल्टीपल लाइसेंसेस का प्रावधान है, ये पहले से है, 2003 के लॉ में है। ये जानते हैं कि 2003 के लॉ में है, लेकिन जानबूझ करके यहाँ पर गलत बयानी कर रहे हैं ताकि ये पब्लिक को गुमराह कर सके। अध्यक्ष महोदय, ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सही नहीं है। और अध्यक्ष महोदय, जो कंसल्टेशन विद द स्टेट्स, अध्यक्ष महोदय, हमने हर एक राज्य से कंसल्ट किया, हर स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। इस बिल में कहीं कोई, ये बिल प्रो पीपल है, ये बिल लोगों के हक में है, ये बिल किसानों के हक में है, ये बिल पावर सिस्टम के हक में है। विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ लोग। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सीट पर मांगा जाता है डिवीजन, आप जाओ अपनी सीट पर। अध्यक्ष महोदय, I introduce the bill and I pray that this be referred to the Standing Committee for examination. हो चुका है।